Okay, so today we are going to study the topic which is named as clippers. Clippers means to clip any unwanted portion of the input signal. Clip means rather cutting the signal, right? So what the clipper does is that it removes a part of input, right? So let me give you a hint for that. Suppose I am having this input signal, right? Now from this input, I want suppose a circuit which can give me this particular type of output, let's say this. So what I've done, I have just clipped the this particular portion, right? तो मीन्स मैंने पॉजिटिव तो पूरा लिया और नेगेटिव का कुछ पोर्शन क्लिप कर दिया. और इट कैन बी वाइस वर्सा आल्सो. इट इज नॉट कि आपका नेगेटिव में करना है, इट कैन बी टू द पॉजिटिव आल्सो. मीन्स सपोज आई वांट आउटपुट ऑफ दिस टाइप. सो अब जब हम क्लिपर पढ़ते हैं तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है बच्चे कि whenever a particular portion is being clipped, either positive or negative, depending upon that its name comes. For example, if I am getting this type of output where positive portion is clipped, so I will call it as positive clipper, and for this particular scenario I will call it as negative clipper. So one thing I am clear that ki clipper can either clip the positive half or the negative half, right? But in certain scenario it also clips both the halves. Like, let me give the example for that. It might give you this type of output, right? ये बहुत ही एक्सट्रीम केस में आता है, बट स्टिल इट कैन. सो इसका मतलब क्या होगा, जो आपका क्लिपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इट्स जॉब इज जस्ट टू रिमूव द अनवांटेड पोर्शन फ्रॉम द सिग्नल, राइट? अब अनवांटेड क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर सर्किट. तो इसका जो क्वेश्चन आता है आपको, इट जनरली कम्स विद टू वेज. कैसा होता है क्वेश्चन, लेट मी टेल यू. एक तो ये होगा, यू आर गिवन अ सर्किट, राइट, एंड यू आर आस्क्ड टू ड्रॉ आउटपुट वेवफॉर्म, राइट? ये तो वन टाइप क्वेश्चन हो गया कि आपको सर्किट गिवन होगा, हम देखेंगे सर्किट बहुत सारे, राइट? उसकी आप आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करो. सेकंड क्या होगा, रिवर्स. यू आर गिवन अ आउटपुट वेवफॉर्म and you can be asked to draw the circuit which generates its output. So it means you should be very much clear that how my circuit is behaving, only then I can revert it, right? Now the clipper is having two further categories. One is series clipper and one is parallel clipper. So how to identify ki the circuit is a series clipper or shunt clipper? So the thumb rule is that for the series clipper, the diode used in the circuit is in series with the load. Likewise, for the parallel clipper, diode used in circuit is in parallel with load, right? This is all regarding the definition. Now I will start the circuit. ठीक है? अब circuit में क्या है? We will first discuss series clipper, then we will come to the parallel clipper, right? So for the series clipper, it's very, very simple. Like we have done in the last class, we have done a half wave rectifier, right? So let me again draw the same circuitry. I am having a diode, then I am having a load resistance, right? This is my input, and across this I am taking the output.
So for the rectifier case, we have given a AC input and we found that we are getting only the positive, not the negative portion, right? This we have already studied, V naught and Vi. So at that time also we said that this is a case of negative clipper because it clips the negative, and this diode is in series with load, so it's negative. I will write negative series clipper, right? Now, if you think, sir, what will happen if I give suppose a triangular waveform? So for the triangular, हाँ जी सर ये थोड़ा सा बता दो सर फिर से सीरीज नेगेटिव क्लिपर सर, ये समझ भी नहीं लग रहा। सी ये तो हमने लास्ट टाइम किया था रेक्टिफायर वाला पोर्शन कि आपका Yes, ये sir. तभी डिस्कस किया, ये पॉजिटिव हाफ है नेगेटिव हाफ है। पॉजिटिव हाफ में क्या Yes. होगा, अगर ये आपका डायोड आइडियल है, राइट, तो क्या होगा, दिस दिस विल मेक द डायोड टू बी शॉर्ट सर्किट, तो करंट फ्लो Yes, sir. करेगा, आपके आउटपुट में आएगा एज इट इज। नेगेटिव वाले टाइम में आप रिवर्स होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आपके आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। Yes, sir. राइट, तो ये हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इसलिए मैंने इसको डिटेल में बताया नहीं आपको, राइट। सो ये Okay. आपका क्या है फॉर द सेकंड टाइप ऑफ वेवफॉर्म, इफ इट इज अ ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, suppose my input is triangular instead of sinusoidal, triangular, तो क्या होगा, no issues. For the positive it will conduct, for the negative it won't conduct. I am considering the case of ideal diode, right? And we have also covered last time, if it is a practical diode, तो हमने क्या निकाला था, याद है किसी को? क्या डिफरेंस आया था? सेम ही वो आएगा, मैक्सिमम वोल्टेज आउटपुट सेम मैग्नीट्यूड आएगा। पहले पॉइंट it will start after certain time, Yes. कंडक्ट करेगा and it will conduct this time, and the value will be how much, if it is suppose Vm, तो यहाँ कितना आएगा, Vm minus Vt. K minus VT Vm minus Vt, yes, ठीक है, ये हमें ऑलरेडी अंडरस्टूड है ये बात कि 0.7 ड्रॉप और Vt जो ड्रॉप है मेरा डायोड के क्रॉस हो रहा है, जब मैं इनपुट दूंगा तो मेरी आउटपुट की जो पीक होगी वो Vm minus Vt आएगी। This I have already understood. So this is a case of negative clipper. And if suppose I do the reverse means if I change the direction of my diode, तो क्या होगा? सर तब भी पीक रहेगी। Suppose I will take as this, and if suppose now I am giving AC input, what will be the output? नीचे बनेगा। Yes, so I will get only negative, so So not the bad. positive, because for the positive part this will be reverse biased, रिवर्स right? Sir, हाँ जी बोलो। can you please show the previous slide? सर Okay, thank you, sir. सर इसमें डायोड वो आइडियल है। सी आइडियल होता है प्रैक्टिकल, शेप तो ऐसी ही आएगी, फर्क किसमें Yes, आएगा, sir. इसमें एम्पलीट्यूड। अगर तो आपका आइडियल है तो यहाँ पर माइनस Vm आ जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, माइनस Vm प्लस Vt। क्लियर? अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग डालते हैं, ये तो अभी सिंपल हो गया बहुत, है ना, ये तो मैंने ऑलरेडी पहले किया हुआ था रेक्टिफायर वाला। अब जो आपका एक्चुअल है क्या है, हाँ जी बोलो। सर VT एक बार बताना कौन सी वोल्टेज थी सर, मैं लिखना भूल गया था एक्चुअली पिछले लेक्चर में। Vt is 0.7 फॉर सिलिकॉन, ओके सर। राइट, और अगर 0.3 होगा किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं। क्या ट्विस्ट है कि आपके पास ये डायोड गिवन है, एंड अक्रॉस दिस डायोड लेट मी प्लेस वन बैटरी V, any battery, 1 volt 2 volt कुछ भी होती है, right, and I am applying here a load resistor. So I'm just adding one more component from the, if I go to back slide, here I have just kept one more additional component, वो क्या लगाया मैंने, बैटरी लगाई है ना, और कुछ नहीं किया मैंने। Now let's try to make it out, what is the output? Let's say this is Vi and the peak is Vm, and I am assuming that this Vm is greater than V, right? Now for this type of circuit, whenever we are to go to analyze, तो first thing आपने क्या देखनी है, just point note करो, first point, diode
direction. That is, it is towards left to right, right to left. Second thing, you have to determine the input voltage for which diode transition takes place. अब डायोड ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि डायोड ऑन से ऑफ पे हो रहा है या ऑफ से ऑन, मींस ऑन टू ऑफ और ऑफ टू ऑन. तो अब आपने क्या करना है कि जब भी आपको एक ऐसा सर्किट मिलेगा तो आपने पहले चेक करना है कि डायोड की डायरेक्शन किस तरफ है. फिर ये देखना है कि डायोड के अक्रॉस में जो मैंने इनपुट वोल्टेज लगाई है वो कितनी वोल्टेज मेरी लगाऊंगा कि मेरा डायोड ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है. मींस ट्रांजिशन वाला पॉइंट ढूंढना है आपने. जैसे मैं इस केस में अगर आप बात करूं तो अब इस केस में क्या है, डायोड के अक्रॉस क्या लगाया हुआ है मैंने, और डीसी वोल्टेज और वी. अब वी का देखो ध्यान से, क्या देखना है आपने, ये पॉजिटिव पोर्शन है, ये नेगेटिव है. इसका मतलब क्या हो गया कि डायोड अगर मेरा ये वाला है तो इसके यहाँ पर माइनस वी वोल्ट ऑलरेडी है, चाहे मैं इनपुट लगाऊं या ना लगाऊं. बिकॉज दिस इज अ फिक्स्ड डीसी वोल्टेज. अब अगर ये मेरा डायोड मान लो आइडियल है तो मुझे बताओ कि यहाँ पर तो ऑलरेडी मेरा जीरो ही है, तो क्या ये डायोड काम करेगा अगर मैं कुछ इनपुट नहीं लगाऊंगा? नो सर, नहीं करेगा. अब क्वेश्चन ये है कि अब मेरा डायोड काम नहीं कर रहा, लेकिन किस टाइम पे डायोड काम करेगा? तो जब Whenever my वोल्टेज आएगी input ऊपर हो जाए. is equal to or V. greater than वी. यस सर. dt. सर समझ गए. अगर मेरा आइडियल डायोड है तो मैंने क्या बोला कि अगर मेरी इनपुट ग्रेटर देन V हो रही है, इन दैट केस माय डायोड विल स्टार्ट कंडक्शन. तो ये मेरा कौन सा पेज आ गया? ट्रांजिशन वाला पेज आ गया. सर हाँ जी बोलो. सर ये माइनस वी वाला कैसे आया? माइनस वी मैंने क्यों लिखा यहाँ पर, आपको बताने की वजह, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल लगा डायोड का. डायोड के पास क्या लगा? वी वोल्ट की बैटरी लगी है जिसका नेगेटिव टर्मिनल लगा है. ओके ओके. दैट्स व्हाई आई रिटन माइनस वी. तो Okay. अब अगर मैं वेवफॉर्म बनाऊंगा तो कैसी आएगी देखो. लेट्स से दिस इज माय इनपुट Vi and let's say this is my Vm, right? So for this particular case, suppose मेरी V कहीं पर यहाँ पर है रफली. अब let me plot the output. सोचो आउटपुट कैसी आएगी? From 0 to V volt, will my diode conduct? No sir. नो सर. After V, it will conduct? Yes sir. Okay. And if my diode conducts, what will be the output across this? Vm minus V. Yes, very Yeah, good. Yes. So इसका मतलब क्या हो गया? Now for this particular waveform, I will get output what? Output follows the input from this particular point. Before that, its value is 0. So if I try to plot here, I will plot it like this. Start with the 0. Peak will be Vm minus V, and for the other half 0. तो मेरा ये क्वेश्चन जो है, ये कौन सा ग्रिप बना, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव. यस, इट इज नेगेटिव सीरीज क्लिपर. आई अगेन रिपीट, इसको समझ नहीं आया फिर से देखो. मेरा ये डायोड लगा हुआ है सीरीज में लोड के साथ में, ठीक है. I said कि across this diode I have placed a battery of V volts in such a way that negative terminal is connected to the P side. So it means this negative terminal makes my diode always reverse biased. So if I want this diode to conduct, I should apply at least V volt, right? So for V volt, its conduction starts, and if its conduction starts, it means the output follows input, and what will be the maximum peak attainable? That is Vm minus V. So it means for all the other cases, if my input Vi less than V, my output will be what? 0 volts. For Vi greater than V, my output follows input. But maximum P कितना आएगा? Vm minus V. यहाँ पे किसको डाउट कोई?
If this thing is clear, let me take on question. सर हाँ जी बोलो. सर लाइक हमने सर अगर यहाँ पर जैसे हमने पता है कि आइडियल मतलब जो हमारे प्रैक्टिकल डायोड है 0.3 और 0.7 पे वर्क करते हैं सर. लाइक अगर हमने बैटरी सर 0.2 की लगा दी तो सर वो कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल मतलब रहेगा ना सर. तो मतलब उस केस में वो वर्क नहीं करेगा. एक मिनट सुनो बात. अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कि आइडियल डायोड तो सिर्फ कुछ भी ड्रॉप नहीं है. ओके सर. प्रैक्टिकल वाला केस भी हम कंसीडर करेंगे अभी. नहीं सर जस्ट जनरली पूछ रहा था. हाँ नहीं समझ गया मैं आपकी बात. अगर यहाँ पर मान लो मैं कहता हूँ कि मेरे को 0.7 की बैटरी भी चाहिए तो क्या होता बताओ. तो सिंपल ये होना था कि V वोल्ट पे कनेक्शन स्टार्ट नहीं होनी थी. ओके सर. Then in that case your VI should be greater than equal to V plus 0.7 0.7 है ना. तो सिर्फ फर्क क्या होता है, शेप तो ऐसी आती है लेकिन अब पीक कितने आती, VA minus V minus 0.7. यस सर. Right, got it now? यस सर. Okay. सर एक बार वो बता दो नेगेटिव पार्ट क्यों क्लिप हुआ. See नेगेटिव पार्ट में आपका डायोड काम कर रहा है, चेक करो. आपका जो डायोड है, डायोड की जो अरेंजमेंट कर रखी है वो किस तरह से है कि डायोड के नेगेटिव पे, डायोड के पी पे क्या लगा है, माइनस वी वोल्ट लगा रखा है. इसका मतलब जब तक इसको वी वोल्ट्स नहीं मिलेगा तो माइनस वी प्लस वी जीरो हो जाएगा, तब कनेक्शन स्टार्ट करेगा ये. हाँ सर. है ना. तो उससे कम मींस इफ माय इनपुट इज लेस देन वी वोल्ट्स माय डायोड इज रिवर्स बायस्ड और ओपन सर्किट. एट दैट टाइम व्हाट इज द आउटपुट? 0. Right? Yes sir. Now let's take one numerical to have the get more insight into that. The numerical is suppose. हाँ जी. सर पिछली स्लाइड कर दो एक बार सर. हाँ जी बोलो. सर ये नोट कर रहा था मैं एक मिनट. सर कर ये दो मिल आगे. जाएगा आपको वीडियो बच्चे, इट्स अवेलेबल. ठीक है. सो अब आपके पास क्या है, अब मैं डायोड का देखो, डायोड मेरा वही है लेकिन मैंने बैटरी को उल्टा कर दिया. तो ध्यान रखना है आपने. तो जब क्वेश्चन सॉल्व करना है चेक करना है कि डायोड की डायरेक्शन कैसी है, उसके पी पे एन पे क्या लगा, बैटरी कैसी है. राइट. नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर केस you will solve quickly. Right. The voltage I am giving you is 5 volts, negative this side, positive this side. Right. And let's consider this is the ideal diode and the input is 20 volts peak. This is 20, this is minus 20. This is my input VI. Now I need to have the sketch of the output. बन जाएगा. ट्राई करो, शाबाश. जस्ट टेक 1 मिनट. जिसको नहीं आया वो यहां देखो ध्यान से. ये जो डायोड लगा है इसके P यहां पर है, यहां पर N है, ये तो मुझे पता ऑलरेडी है ना. दिस इज P, दिस इज N. और यहां पर P पे मैंने क्या लगाया, पॉजिटिव टर्मिनल इस क्वेश्चन में है ना. तो इसका मतलब आई कैन राइट हियर प्लस 5 वोल्ट्स. यस सर. तो चाहे मैं इनपुट लगाऊं या ना लगाऊं 5 वोल्ट तो हमेशा है ही. अब क्वेश्चन ये आएगा कि क्या ये 5 वोल्ट डायोड को फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं? सर फॉरवर्ड बायस कर रहा है. फॉरवर्ड बायस. इट मींस 25 नो वोल्ट इनपुट. हाँ जी. सो 25 वोल्ट आएगा V0. V0 सी इसमें खाली एक वोल्टेज नहीं आएगा, इसमें पूरी वेवफॉर्म आएगी. Yes, sir. आप ये कहते हो कि वोल्टेज की पीक 25 वोल्ट आएगा या नहीं आएगा, है ना? हाँ वही. दैट्स फाइन. 25 वोल्ट आएगा, बिल्कुल ठीक निकाला आपने. अब यहाँ पर एक चीज तो समझनी है क्योंकि हमें इसमें वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है ना. तो आपने क्या चीज पॉइंट आउट करना है यार कि अगर मेरे पास यहाँ पर प्लस 5 वोल्ट्स की बैटरी लगी है इस तरह से कि डायोड को फॉरवर्ड बायस कर रहा है, इट मींस चाहे मैं इनपुट लगाऊं या ना लगाऊं मेरी आउटपुट क्या आएगी. इफ माय इनपुट इज 0, व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट विल सर 5 वोल्ट. 5 वोल्ट Obvious. आएगी. यस सर. इफ इट इज आइडियल डायोड. अगर प्रैक्टिकल हो तो 4.7 4.3 आएगी. ओके सर. ओके. ठीक है. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि सर बिना इनपुट के आउटपुट आ रही, ठीक है, लेकिन व्हाट विल हैपन और व्हाट इज द ट्रांजिशन स्टेज, कब ये मेरा डायोड कंडक्ट नहीं करेगा? सोचो. -5. जब माइनस मैं 5 इनपुट पे लगाऊंगा -5 से ज्यादा नेगेटिव मींस -6 -7 -8 -9 -10, माय डायोड वॉन्ट कंडक्ट. Yes, sir. राइट. सर क्वेश्चन रिपीट कर दो. क्वेश्चन बच्चे ये था कि इस सर्किट के लिए हमें आउटपुट को प्लॉट करना है. राइट. तो हमने कहा इनपुट हमारी ये 20 वोल्ट पीक है. Yes, sir. Now without any input I am getting output always 5 volts because this is
a battery connected over there, right? So it makes my diode forward bias always without any input. But what will happen when we change the input? So input यहाँ पर अब आपकी अगर 0 से लेकर 20 तक जाता हूँ मैं, तो क्या हो रहा है? It is further adding to the battery. Yes, sir. है ना? तो पहले 5 वोल्ट लगा हुआ है, अब इसके साथ आप 20 वोल्ट और लगा दो. It means now you can have the maximum peak at 25 volts. है ना? तो आपको जो मैक्सिमम पीक कितनी मिलेगी? 25 तक जाएगा आपका सिग्नल. लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कैसे जाएगा, बाकी नेगेटिव पोर्शन कैसे होगा? तो इट मींस अगर मैं नेगेटिव में वोल्टेज लगाता हूँ, मान लो लगाई -1 वोल्ट्स, सो -1 का मतलब क्या हो? -1 + 5, it gives me 4 volt. Still it is going to make the forward bias of a diode. If I apply -2 again, if I apply -3 again, if I apply -4 again, it will allow. If I apply -5, till then it is allowing. But after this -5.01 भी लगाऊंगा तो क्या आएगा? -0.01. So it is not allowing this diode. Okay, sir. Right? So it means my output will be what? It will go for the positive as it is, and for the negative it gets clipped somewhere here. So if I plot it here, I am going to shift my axis now. Axis कैसे shift होगा? Without any input, I am getting output 5 volts. So it means it will be like this. सर ये तो क्लैंप हो गया ना. बेसिकली ये आपको मैं दिखाने के लिए बनाया कि आपका क्लैंप तो वो होता है बच्चे जब आपका पूरा का पूरा वेवफॉर्म में क्लैंप हो गई हो. इसमें हमारा क्लिपिंग हो रही है. हमने एक पोर्शन जो -5 वोल्ट से नीचे था उसको क्लिप कर दिया ऑलवेज. ओके सर. राइट. अब इसी क्वेश्चन में लेट मी हैव अ स्मॉल चेंज किया एक बार और बता दो ये. अरे और एक बार बता दो. हाँ, मैं एक मिनट बताता हूँ. फॉर द अदर्स let me just make the input waveform for the same circuit, then I will again explain the same circuit, right? जिनको समझ में आ गया वो नेक्स्ट ये प्लॉट करो इतनी देर. अब मेरी इनपुट चेंज होगी. इंस्टेड ऑफ नाउ सिनुसाइडल आई एम नॉट टेकिंग दिस केयर with 20 volts here and -10 here. ठीक है, सर्किट सेम है. अब जिनको समझ नहीं आया, आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग, लिसन प्रॉपर्ली. ये आपका डायोड है. डायोड के नेगेटिव पॉजिटिव मैंने क्या लगाया है? +5. इट मींस आई एम हैविंग अ +5 volts at the diode. So irrespective of my input applied, I am always getting 5 volts. Got it? Now the moment I start applying the input 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, so जैसे आपकी पॉजिटिव वोल्टेज आएगी, it is further making the diode to be forward bias only, है ना? तो इसमें तो कोई फर्क आएगा नहीं. तो आपकी आउटपुट फॉलो करेगी इनपुट को. लेकिन अब आपका सिनेरियो क्या होगा कि आपकी आउटपुट 5 वोल्ट के ऊपर ही रहेगी हमेशा फॉर द पॉजिटिव हाफ. क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर डायोड जो लगा हुआ है वो उसके पी पे क्या लगा है? +5 की बैटरी लगी हुई है. नाउ द क्वेश्चन इज दैट whenever I am applying the negative voltage, at what time my diode will stop working? And that's the point when we apply the input lesser than -5 volts. That is, if my input goes less than -5 volts, then my output will be what? 0 volts. Why? Because if I apply, suppose this is example -5.01 even, यहाँ पर आपकी इनपुट आ रही थी, सपोज करिए 5.01 है. So at this particular time, what will happen? That across the diode P side, I will getting a negative voltage. This will make the diode reverse bias. And if my diode is reverse bias, it means it won't be conducting. It's acting as an open circuit. So at that time, I am getting an output how much? 0. So that's what I have plotted here. Is it clear to everyone? Yes sir. हाँ जी, बोलो. जो हमारा ये ग्राफ है 5 वोल्ट से ऊपर शिफ्ट हुआ है, ये मतलब जो पीछे लगाया हुआ है उसके कारण ही हुआ है बस. Yes. अगर मैं ये बैटरी निकाल दूं यहाँ से तो ये नीचे आ जाएगा. ओके सर. ठीक है. अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो इसके लिए, तो कैसे आएगा? बना कैसे का आउटपुट? सर 5 पे डार्क सर्कल, फिर 25 से होलो सर्कल से स्ट्रेट लाइन. दोबारा बोलो, आउटपुट कैसे आएगी? पहले सर पहले पी कहां तक जाएगा? सर 25 तक. 35. ओके. फिर और सर 5 वोल्ट पे 0 पे. यहाँ पर 5 वोल्ट लिखूं? नहीं, यहाँ पर. यस सर. ओके.
फिर सर यहाँ पे डार्क सर्कल 5 वोल्ट पे और 25 से स्ट्रेट लाइन। नहीं, डार्क सर्कल नहीं समझा मैं, आपकी क्या कहने जा रहे हो? तो मतलब 25 से स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, कब तक? सर उसके साथ तक। यहाँ तक? यस सर। ओके, सर फिर 0 0 हाँ। 0 0 0 0 फिर। बाकी आगे 0 रहेगा, है ना? यस सर। परफेक्ट है बहन। क्या नाम है बच्चे आपका? सर प्रकुल। प्रकुल, वेरी गुड, very well plotted, it's correct waveform. See, जिसको नहीं आया, let me explain. For the first input, how was the input from 0 to t/2, ठीक है? आपकी इनपुट क्या है? +20. यहाँ पर देखो, it's not sinusoidal, it is constant 20 volts, ठीक है? तो अगर आप यहाँ 20 volts हो गए, इसका मतलब क्या हो गया? Now we are adding one additional battery of 20 volts. So it makes 25, right? Yes, So sir. I am getting output what? 25 volts. ओके ओके। Now after 20, next level क्या है मेरा? -10, right? Yes, So sir. the moment my input is -10, इसका मतलब क्या हुआ? I can now, let me erase this. So when I apply here -10, so it means my input will be like this. तो अब मैं इसको लगाऊं तो इसका मतलब क्या हुआ? -10 + 5 कितना हो गया? -5. It means at this particular point I am getting how much? -5 volts. So it means at time t is equal to t/2, what I am getting? I am getting 0 output because at that time my input is -5 volts. That makes my diode reverse biased. And if it is reverse biased, it means it is acting as open circuit. So there will not be any flow of current. So output will be 0. Sir, हाँ जी, सर ये 5 वोल्ट कहाँ से आया? ये सर्किट में है, गिवन है, ओके ठीक है? सर ये ना समझ में नहीं आया। समझ में नहीं लग रहा सर। ओके, दोबारा समझा दो। दोबारा कौन सा वाला? ये स्केयर वाली वेवफॉर्म को, साइन सर वाली? सर ये जब 25 के बाद वाला। ओके, स्केयर वाले में यस ना? सर। यस सर। हाँ, एक मिनट फिर से देखो, कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ पर आपको 25 समझ में आ गया आपको, ये वाला पार्ट? यस सर। 25 कैसे है, Yes, ये तो sir. क्लियर हो गया। यस सर। अब हमने कहा कि जब हमारे 25 इनपुट थी, जब 20 इनपुट थी, आपकी आउटपुट 25 आई, बिकॉज दिस 5 वोल्ट वाज एक्स्ट्रा अवेलेबल, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज दैट हियर आफ्टर 20 वोल्ट एट टाइम t इज इक्वल टू t/2, देखो क्या हो रहा है? इनपुट शिफ्ट फ्रॉम 20 टू -10. तो पहले आपकी इनपुट क्या थी? 20 volts. At that time you are getting output what? 25 volts. But 5 now volt. Vi is what? -10 volts, है ना? तो जब आपकी इनपुट -10 आ गई, तो -10 प्लस करो 5 वोल्ट्स में, कितना मिलेगा आपको? -5 -5 से क्या डायोड मेरा काम करेगा? 0 पे चले जाएगा सर, नहीं करेगा। यस, तो 0 पे ही चला जाएगा सर। 0 पे ओके ही ओके। गॉट इट नाउ? ओके सर। तो बस आउटपुट में हमारा मतलब नेगेटिव नहीं आना चाहिए ना कुछ भी सर आउटपुट में? इसमें नहीं, सी आपने जबरदस्ती 0 नहीं करना उसको, आपको लॉजिक लगाना है कि किस टाइम, मान लो मैं यहाँ पे बैटरी चेंज कर दूं, सपोज करो 5 वोल्ट की जगह मैंने 3 वोल्ट कर दिया, तो अकॉर्डिंगली चेंज होगा। यस सर। तो आपने ये देखना है कि सर्किट में कैसे लगा हुआ है, डायोड कैसे लगा हुआ है, उसके पास बैटरी कैसे लगी है, फिर मेरी किस इनपुट के ऊपर डायोड की ट्रांजिशन हो रही है। ट्रांजिशन पॉइंट को निकालना है आपने बेसिकली, कि किस पर्टिकुलर इनपुट वोल्टेज के ऊपर मेरी डायोड की ट्रांजिशन हो रही है, ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन, राइट? अब मैं सर आपको ये दोबारा बता दो सर, ये 0 पे क्यों आ रहा है? हाँ जी सर, सर। सर, वो जब minus- आपके सी डायोड के, ये आपका डायोड है बच्चे, इस डायोड की अगर यहाँ पर -5 वोल्ट लगा दिया, तो क्या डायोड काम करेगा? नो सर। अगर काम नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या, ओपन हो गया? यस सर। ओपन हो गया, इट मींस कोई करंट नहीं जाएगा। अब करंट नहीं जा रहा, तो इस लोड रेजिस्टर में कुछ करंट आएगा? नो सर। तो V नॉट क्या है हमारे पास? I into R। जब I 0 है तो V नॉट भी 0 हो जाएगा बच्चे। ओके ओके ठीक है सर। Got it? ओके सर। सर अगर हम बोलो। 3 वोल्ट की लगाएंगे सर, तब भी मतलब क्या फर्क पड़ेगा सर? वो -7 हो जाएगा तब तो लाइक आएगा, तो तब भी वो 0 के ऊपर ही आएगा ना ग्राफ पे, फिर कैसे आना चाहिए? मेरी बात सुनो, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका मान लो यहाँ पर 3 वोल्ट लगा दिया मैंने, है ना? हाँ सर। तो अब ये डिपेंड करेगा, अगर आपकी ये वाली इनपुट है मान लो, यस सर। है ना, दोनों वाले इनपुट, अगर ये इनपुट है तो क्या होगा उस केस में कि यहाँ पर अब आपको जब कुछ भी नहीं लगा रहे तो आपको 3 वोल्ट मिल रही है हमेशा, तो यहाँ पर 5 की जगह 3 हो जाएगा बस। बस वही है ना, बाकी ग्राफ तो ऐसा ही हाँ, होगा। सी हाँ, वही। कहने का मतलब क्या है कि देयर इज नो फिक्स्ड वोल्टेज, डिपेंडिंग अपॉन द अप्लाइड वोल्टेज आपका चेंज होगा बस, हाँ राइट?
Yes, तो ना सर जो फर्स्ट बनाया था साइनोसाइडल का आंसर जो सबसे फर्स्ट था उसमें सर दोबारा क्यों राइज कर रहा है ये राइज कहाँ कर रहा है? सर? ये वाला पार्ट कह रहे हो? यस सर। बच्चे ये तो इनपुट को फॉलो कर रहा है। सी जो मैं ब्लू कर रहा हूं, देखो इनपुट की बिहेवियर देखो ना, कि जैसे आपका इनपुट मान लो -v से -5.01 से -5 पे फिर आगे, तो फिर ऑन हो जाएगा। ठीक है सर। मींस इट इज नॉट कि वन टाइम आपने क्लोज कर दिया डोर को। डोर बेसिकली डायोड को मैं डोर की तरह एक्ट करूंगा कि डोर या ओपन है या क्लोज है। तो डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज अप्लाइड एट द पी साइड ऑफ द डायोड, अकॉर्डिंगली आपका डायोड बिहेव करेगा। तो अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम में मान लो ये साइकिल आपका कंटिन्यू साइकिल है, तो कंटिन्यू साइकिल में ऐसा होगा पहले उस पार्ट क्लिप होगा, फिर आएगी, फिर क्लिप होगा, फिर आएगी। सो अकॉर्डिंगली कंटिन्यूस आता रहेगा आपके पास। ठीक है सर। ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमने किया था, इसकी अगर मैं शॉर्ट आपको बताऊं तो दिस वाज सीरीज डायोड क्लिपर। तो इसमें हमने क्या लिखा? इफ माय डायोड इज कंडक्टिंग आउटपुट फॉलोज इनपुट, ये देखा अभी हमने। एंड इफ डायोड इज नॉट कंडक्टिंग आउटपुट इज व्हाट? 0। इतनी बात क्लियर होगी कि सीरीज में अगर डायोड कनेक्ट कर रहा है तो आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगी, अगर डायोड कनेक्ट नहीं कर रहा है तो आउटपुट क्या होगी? 0 होगी। ये चीज अब दिमाग में रखनी है आपने अपने, क्योंकि जब मैं इससे अगला टॉपिक बता रहा हूं आपको पहले वाला, उसमें ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा। समझो कैसे। सो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक जो इसी का पार्ट है वो क्या है? पैरेलल क्लिपर्स। So let me draw a simple circuitry. यहां पर क्या है? रेजिस्टेंस यहां पर आ गई और डायोड मैंने यहां लगा दिया। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखाना। थैंक यू सर। So for this particular circuit, let me give one input. Let's say triangular input. Let's say this is my Vi. This is my, let's say, R, and I am taking the output across this. अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना। For this particular circuit, my diode is connected in parallel to my output voltage, है ना? आउटपुट मैं देख रहा हूँ सिर्फ डायोड के क्रॉस। अब इस केस में क्या होगा? अगर तो मेरा ये आइडियल डायोड ही है, सिंपल, लेट्स कंसीडर फॉर सिंपलिसिटी कि डायोड इज आइडियल, राइट? Now I have to figure out when this diode is going to be on. So from looking into the input, I can see that for the positive half of my input, definitely my diode will work, isn't it? Yes. But if I apply the negative half, my diode won't work. Yes. Right. So let me write here. If my input is positive, input positive half, then diode conducts. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ये ट्रायंगुलर वेव और ये जो दूसरी वेव आपने बनाई थी, ये मतलब अपने आप बना सकते हैं कि मतलब कोई कंडीशन होती है इसके लिए? गिवन होगी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कि सर हमने सिर्फ साइन ही पढ़ाया था हमें, तो कोई भी टाइप की इनपुट हो सकती है, ये आपको गिवन होगी। ठीक है, प्रॉब्लम में गिवन होगी इनपुट क्या है आपकी, किस शेप की इनपुट है, राइट? नाउ इफ I apply input negative half, then diode will not conduct. यहां तक क्लियर है सबको? सबको पता ही बात है ना, इट्स नॉट न्यू। अब क्वेश्चन यहां पे आएगा कि अगर मेरा डायोड कंडक्ट कर रहा है फॉर द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ, व्हाट इज गोइंग टू बी माय आउटपुट? एनीबॉडी? सर I by R. Yes, I sir. by R. R. IR. IR. Where is R? You're talking about this R? यस सर, ये No, it's wrong. V minus IR. सर ये कौन सा डायोड है सर? ये आइडियल डायोड में लिखा देखो सर एक बार वापस रिपीट तो करना सर सर, फिर आपने तो क्या बोला? मेरा जीरो क्वेश्चन ही ये है, जाएगा। for this particular circuit, if my input is positive, that is for the positive half of the input, ये जो आपको portion है for this particular question, Yes sir. what will be the output? Sir V V minus IR. जीरो V minus IR. IR. Okay, और कोई?
flowing across through resistor. नहीं, और कोई? जीरो सर। जीरो? Zero. किसने बोला जीरो? नाम बताओ। जीरो। हाँ, माधव? Very good. It's 0 volt. Why it is 0? Now the question is. ध्यान से देखो। आइडियल है। Yes, आइडियल है। अब देखो अगर डायोड कनेक्ट करेगा इसका मतलब क्या है? It acts as a short circuit. अरे हाँ, है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है तो क्या मेरा लोड पे कुछ वोल्टेज आएगी? करंट जाएगा नहीं कुछ भी, बिकॉज करंट ऑलवेज फॉलोज वोल्टेज। यस सर, ऑलवेज फॉलोज सिंपल लीस्ट यस सर रेजिस्टेंस पाथ। ये हम पता है ना? तो अगर उसको जीरो रेजिस्टेंस मिलेगी तो वो बाकी और क्यों जाएगा? कहीं भी जाएगा वो, है ना? तो इट मींस इफ माय डायोड इज कंडक्टिंग आई एम नॉट गेटिंग एनी आउटपुट सर। इफ इट इज आइडियल। सर वो बात तो ठीक है, बट सर आगे कौन से हमने कोई रजिस्टर लगा रखा है? आगे सी यहाँ पर अगर रजिस्टर जाए, मान लो आपने नहीं भी लगा रखा, चलो ठीक है। हाँ। जब ये डायोड कनेक्ट करते हैं तो हम क्या कहते हैं? वीडी कितना होता है? बताओ। जीरो लिखा है? हाँ। राइट नाउ। ठीक है। हाँ, नाउ द क्वेश्चन इज दैट if I am applying a negative half, then this diode won't conduct. If it is not conducting, it means that what will be the output? Zero. No. V. Yes. For the this is for the positive half VI, this is for the negative half VI. क्योंकि अगर मेरा डायोड कनेक्ट ही नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या होगा? वो ओपन हो गया तो उस वाली ब्रांच से तो करंट जा ही नहीं रहा, तो करंट कहाँ जा रहा है? क्रॉस आउटपुट। यस सर, ठीक है। और कितना करंट जा रहा है? जो मेरी इनपुट है। सो इफ आई नाउ माइनस आईआर नहीं आएगा? हाँ जी, माइनस आईआर नहीं आएगा? हाँ सर। व्हाई? तो माइनस आईआर तो नेगेटिव में दिखाई रही है। हमने लिखा है V0 इक्वल टू VI, तो VI उसमें क्या है? माइनस है, तो माइनस में आएगा। नहीं सर, लाइक आर भी तो कोई कुछ खाएगा ना उसमें से वोल्टेज ड्रॉप। चलो जितनी मर्जी निकाल लो। वही है। लेट्स से कि उसमें बहुत ही लो वैल्यू रजिस्टर है। ओके सर। राइट, तो वो पॉइंट ऑफ हमें तो सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि हमारी सिग्नल की वेवफॉर्म शेप कैसी बनेगी। ओके, नाउ लेट्स हैव वन न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल में क्या करूंगा? मैं डायोड को उल्टा कर रहा हूं और थोड़ा सा ट्रिकी कर रहा हूं। हाँ जी सर, बोलो। एक बार पिछला वो करना। हाँ जी बताओ। सर इसमें जो ये वोल्टेज आएगी ये इसके उल्टी नहीं आएगी VI के? नहीं, ये तो पॉजिटिव में तो कनेक्ट नहीं करा, नेगेटिव में कनेक्ट करा। नेगेटिव में क्या है? नेगेटिव वोल्टेज है, तो नेगेटिव वोल्टेज की आउटपुट तो यहाँ पर नहीं पॉजिटिव नहीं हो जाएगी, इसको हमने कैंसिल आउट रहेंगे ना दोनों। ये देखो पॉजिटिव ऐसे है, तो जो पोलैरिटी इनपुट की वही पोलैरिटी आउटपुट की आएगी। नहीं हमारी सर हमारी ये नेट वोल्टेज हमारी 0 है, वो नेगेटिव वोल्टेज में। सी नेगेटिव वाले केस में आपको आउटपुट मिल रही, यहाँ पर नहीं जा रहा ना करंट। देखो लेट मी ड्रॉ इट हियर। ये आपका जो नेगेटिव वाला पार्ट है बच्चे, उसमें ये आपका ओपन है ना? ये है आपका। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव इनपुट जा रही है आपके पास, वो सेम पोलैरिटी से आउटपुट पे आ रही है। तो इट मींस एंटायर अमाउंट ऑफ करंट गोस थ्रू दिस ओनली स्टेट पे, तो पोलैरिटी चेंज होगी नहीं इसमें कुछ भी। ठीक है, ठीक। राइट, नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल जिसके अंदर थोड़ा सा स्लाइड ट्रिक है। वेवफॉर्म कैसा उसका फिर ऊपर को ही जाएगा कि उसका नीचे को? नीचे देखो बनाया तो है मैंने, ये देखो यहाँ पर देखो राइट साइड पे ऊपर। यस सर, यस सर, यस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। थोड़ा सा ट्रिक डाला इसके अंदर मैंने, डायोड को उल्टा कर दिया जो पहले बताया था, और मैंने यहाँ पर एक बैटरी भी डाल दी, 4 वोल्ट की बैटरी डाली। ठीक है, और VI मेरी सपोज करो गिवन है आपको 16 वोल्ट्स पीक ट्रायंगुलर वेव। दिस इज 16, दिस इज -16, right? This is 4 volt battery and I am taking the voltage across this. सर डायोड आइडियल है? Yes. तो सर 4 वोल्ट मैक्सिमम पीक आएगी इसकी। 4 वोल्ट मैक्सिमम पीक आएगी। पीक आएगी। यस सर। ओके,
क्या नाम है आपके बच्चे? सर पूरे ग्राफ को 4 वोल्ट से ऊपर कर देंगे ना तो आसान रह सर जाएगा। एंट्रिक्स आएगी सर। सर मेरा नाम एंट्रिक्स है। एंट्रिक्स नहीं, थोड़ा सा अंदाजा गलत लगा, सोच ध्यान से ऐसे। सर इस पूरे ग्राफ को 4 वोल्ट से ऊपर कर देंगे तो आसान नहीं रहेगा। नीचे जी, आपने कुछ नहीं करना, आपको सर्किट गिवन होगा, आपने उसको सॉल्व करना है बस। सर लाइक देखो सर, VI जब आएगी पर वो 4 से हाई हो जाएगी बस। 4 से नीचे 4 से हाई हो जाएगी, नीचे आएगी, 20 वोल्ट मैक्स वोल्टेज 12 हो जाएगी। कितनी आएगी आपको बताओ मुझे, शाबाश। 20 वोल्ट सर मैक्सिमम 12 हो जाएगी। मैक्सिमम 12 हो जाएगी। मैक्सिमम 12 हो जाएगी। 12 ओके, तो पॉजिटिव में तो VI ही आएगा ना। ओके सर VI से जो आएगी करंट सर, वो तो आगे वो जब जो डायोड से निकलेगी करंट सर वही आएगी ना। मतलब जो 4 वोल्ट वाला डायोड है सर, जो वहां से आउटपुट निकलेगी वही तो सिग्निफिकेंट होगी। पिछली वाली में तो वो मतलब आपने वो कंडक्ट ही नहीं करने देगा ना डायोड उसको। ओके, लेट मी नाउ टेल यू। अब इस केस में क्या लगा हुआ देखो ध्यान से समझना। ये डायोड मेरा ऐसे लगा हुआ है और डायोड के पी पे क्या लगाया हुआ मैंने, +4 वोल्ट्स। यस सर, गॉट इट। अब मेरे यहाँ पर कितनी आ रही है, VI आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आ रही है। लेट्स टेक एग्जांपल कि आपका ये कितनी VI लगाऊं कि ये डायोड काम करे या ना करे। सर लेस देन -4 अगर है तो वो काम करेगा। लेस देन -4, ओके, लेट्स टेक लेस देन 4। हाँ 4 और -4 तो 4 सो इट मींस अगर मेरे पास ऐसा केस है कि मेरी इनपुट लेट्स से दिस इज 4 वोल्ट्स समवेयर, ठीक है। अगर मेरी ये इनपुट है, इससे नीचे होगी इनपुट अगर मेरी 0 to 4, फॉर इनपुट 0 to 4 will it conduct? Yes sir, yes or no? Yes sir, करेगा सर। right, so it means if my input voltage is less than 4 volts, my diode conducts सर 4 वोल्ट पे थोड़ा ना करेगा सर वो 4 वोल्ट तो सर अगर पीछे से वहां से अगर ये जो आपने कहा कि 4 वोल्ट वाला है सर, अगर आपकी इनपुट पीछे से 4 वोल्ट आएगी, नीचे से भी 4 वोल्ट जा रही है, अच्छा ठीक है पक्का करेगा। लेस देन लिखा है। लेस देन लिखा है, बच्चे देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि लेस देन 4 का मैं वो वाला मार्क कर रहा हूँ जो लेस देन 4 वोल्ट्स है, जो मैंने ब्लैक से मार्क किया इनपुट का। दिस इज द वेवफॉर्म व्हिच इज लेस देन 4 वोल्ट्स, इजंट इट? यस सर। तो इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर ब्लैक पोर्शन के लिए माय डायोड कंडक्ट्स। यस सर। And for the upper part, that is I'm marking with blue, diode will not conduct, right? अब दो बातें मैंने निकाल ली कि 4 वोल्ट मेरी ट्रांजिशन वोल्टेज है, इसके ऊपर कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसके नीचे कंडक्ट कर रहा है। यस सर। Right. Now the question is that what will be the output voltage now? सर 4 से चलेगा 8 तक, फिर स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। 4 से चलेगा 8 तक, मतलब कुछ डिग्री पे। 8 मतलब क्या? 8 वोल्ट तक। नो, तो 16 वोल्ट तक स्ट्रेट जाएगा नीचे से। नहीं, 12 वोल्ट तक जाएगा सर। अच्छा 4 से कम होगा, 4 से कम होगा, नीचे को आएगा। नहीं, यही बस यहाँ पर यही पॉइंट होने वाला है। आप देखो ध्यान से कैसे एनालाइज करना है। हमें ये चीज पता लगी कि ट्रांजिशन वोल्टेज मेरी 4 वोल्ट्स की है, राइट? यस सर। जब भी मेरा डायोड कंडक्ट करेगा, जब भी मेरा डायोड कंडक्ट करेगा, ये अगेन रिपीट, उस टाइम पे आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी? 0 नहीं होगी। सोचो क्यों? पैसे वाले केस में मैं आपको दिखाया था, उस केस में डायोड की यहाँ पर बैटरी नहीं लगी हुई थी। देखो 4 - VI कितनी आएगी? 4 - VI नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आपका मान लो डायोड कंडक्ट जो है, डायोड से कंडक्ट कर रहा है, यस सर, राइट? तो उस टाइम पे मींस अगर लेस देन 4 भी वोल्ट है, मैंने 1 वोल्ट लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, अप टू 4 वोल्ट्स माय डायोड इज ऑन। यस सर। It means I am always getting how much? 4 वोल्ट। 4 volts? यस सर। I again repeat, जब तक मैंने इनपुट लगाई अपनी फ्रॉम 0 to let's say 4 volts,
क्योंकि मेरी इनपुट पहले 0 से स्टार्ट हो रही है फिर पीक पे जा रही है, तो 0 से लेके 4 वोल्ट्स के बीच में मेरा डायोड ऑन है हमेशा, isn't it? तो अगर डायोड ऑन है इसका मतलब क्या है, सारा करंट उसमें तो जा रहा है। यस सर 4 वोल्ट है। लेकिन V नॉट के क्रॉस वोल्टेज जो है दो पॉइंट्स के क्रॉस है, वो उसके क्रॉस कितनी वोल्टेज है, 4 वोल्ट। यस So it सर। means it is always maintaining a 4 volt constant. यस सर। But after it, what will happen? The moment I increase the voltage to 4.1 or 4.2 or 4.3, 5, 6, 7 till 16, but this diode will not conduct. Yes, And sir. what will be the output? At that time, my output follows input. सर रिपीट कर दो ये पॉइंट। हाँ मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। हमने पहले क्या कहा कि पहले देखो ये डायोड कब काम करेगा आपका, अगर मैं इनपुट लगा रहा हूँ 0 से लेके 4 वोल्ट तक, 0 to 4, डायोड इज ऑन। यस सर। है ना, तो यहाँ पर 0 लगाया, 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, सबके लिए मेरे यहाँ पर डायोड ऑन रहेगा। अगर ये डायोड ऑन है तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो शॉर्ट का मतलब क्या होगा, लेट मी ड्रॉ इट हियर, ऐसे होगा। यस सर। अब इन दोनों के पास वोल्टेज कितनी आएगी, 4 वोल्ट की बैटरी, क्योंकि डायोड शॉर्ट हुआ, बैटरी शॉर्ट नहीं हुई ना। ओके ओके। Right, so it means when my diode is conducting and my input is less than 4 volts, I am getting output how much, 4 volts. 4 volts. But the moment my diode is off, तो मेरी बैटरी किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो ये ओपन ही हो गया, ओपन सर्किट हो गया सर ये, है ना, तो ये बैटरी का कोई यूज ही नहीं रहा। अब क्या होगा, आउटपुट फॉलोज व्हाट, इनपुट। तो इनपुट क्या है मेरी, जो ये ऊपर मैंने पीक बनाई है देखो। अब उसके बाद क्या होगा, द मोमेंट माय इनपुट गोज लेस देन 4 वोल्ट्स, व्हाट विल हैपन, अगेन आई विल मेंटेन द आउटपुट कांस्टेंट 4 वोल्ट। ओके सर। तो अब इसकी आउटपुट कैसी बनेगी मेरे पास, लेट मी अगेन ड्रॉ इट। यस, फ्रॉम दिस टू दिस ये क्लैंप हो जाएगी, क्लिप क्लिप क्लैंप नहीं बच्चे, क्लिप। हाँ क्लिप, वही मिक्स नहीं करना, क्लैपर पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। तो ये क्लिपर है हमारा, क्लियर होगा ये कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया। अब मैं आपके साथ एक क्विकली एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक मिनट सर, ये नोट कर दो। मिल जाएगा बच्चे इसका ऑडियो, आपको सब मिल जाएगा वीडियो। नहीं ये टॉपिक नोट कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा। Let me share it on the next page. अब देखो ये जो आपको दिखा रहा हूँ, ये समरी है जो हमने आज पढ़ा है अभी। इसमें क्या है देखो, पहले वाले केस में डायोड ऐसा लगा हुआ है, तो ये आपका क्या बन गया, पॉजिटिव क्लिपर। ठीक है, डायोड उल्टा कर दिया तो क्या बन गया, नेगेटिव क्लिपर। फिर मैंने क्या किया, बैटरी लगाई, बैटरी दो से उल्टा नहीं करके। हाँ जी सर, आप इधर बन रहा था नेगेटिव क्लिपर, आपने उधर कह दिया। अच्छा अच्छा, नहीं याद किया मैंने, राइट पे देखो ये वाला। ओके ओके ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ नीचे, तो ये जो आपका बायस लिखा है ना, बायस सीरीज क्लिपर, इसका मतलब क्या है कि हम बायस का मतलब कि जब भी हम बैटरी लगाते हैं किसी क्लिपर में तो उसको बोलते हैं बायस क्लिपर है ये, राइट। अब बैटरी मैंने लगाई टू द योर पॉजिटिव क्लिपर, तो आपका किस तरह से लगाया मैंने कि आइदर टुवर्ड्स दिस साइड और इसका उल्टा, ये दोनों केसेस कवर कर रखे हैं कि बैटरी अगर मान लो पॉजिटिव इस तरफ है, नेगेटिव इस तरफ है, तो फॉर दिस केस अगेन इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट, पॉजिटिव क्लिपर। दिस इज आल्सो टाइप ऑफ पॉजिटिव क्लिपर, क्योंकि जब वेवफॉर्म का ऊपर वाला पोर्शन रिमूव होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव क्लिपर, जब भी वेवफॉर्म का डाउन वाला पोर्शन क्लिप होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव क्लिपर, राइट। तो यहाँ पर देखो इस वाले केस में क्या हुआ है, यहाँ पर वैसे डायोड नेगेटिव क्लिपर था ऑलरेडी हमारे, तो बेस्ड अपॉन द डायोड डायरेक्शन यू कैन आइडेंटिफाई कि आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो डायोड डायरेक्शन अगर पी लेफ्ट पे है और एन राइट पे है, इसका मतलब क्या, नेगेटिव क्लिपर है। अगर आपका एन लेफ्ट पे है, पी राइट पे है, तो आपका पॉजिटिव क्लिपर है। फिर अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो बैटरी लगी है 20 वोल्ट्स की, वो आपकी वोल्टेज को कैसे वेरी कर रही है। ये आपकी समरी शीट थी जो मैं चाह रहा था आपको दिखाना। लाइकवाइज देयर इज अ समरी शीट फॉर द पैरेलल क्लिपर एज वेल। सो फॉर द पैरेलल क्लिपर, या सी, अब ये डायोड ऐसा लगा हुआ पी ऊपर और एन नीचे, सो इन दैट केस इट इज एक्टिंग एज व्हाट, माय व्हिच क्लिपर, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव क्लिपर, राइट। इफ इट इज रिवर्स, एन ऊपर पी नीचे, तो क्या बन गई है, नेगेटिव क्लिपर। नेगेटिव क्लिपर।
राइट। अभी आ गया फर्दर बायस क्लिपर। देखो बायस क्लिपर में क्या किया हमने, ये एग्जांपल लिया था ना, अभी हमने लिया था कौन सा एग्जांपल, ये वाला, दिस वन, है ना। तो देखा था हमने ऐसे आउटपुट मिल दिया हमें। लाइकवाइज इफ आई चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस बैटरी ओनली रिवर्स, तो देखो कैसे मैंने ये आउटपुट मिली आपको। तो जस्ट हैव अ लुक इनटू ऑल दीज फिगर्स। दिस इज अ समरी ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकती है कि बैटरी या तो पी के साथ पॉजिटिव लगा होगा या पी के साथ नेगेटिव लगा होगा, या वो सीरीज में होगा या वो शंट में होगा, या डायोड डायरेक्शन पी से एन होगी या एन से पी उल्टी होगी। और तो लास्ट आपको जो देखो बना हुआ है, जो मैं आपसे बात कर रहा था, इट इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट, जिसमें क्या कर रखा है, 2 डायोड लगा रखे पहले हम देख रहे हो। तो इसको देखना कैसे है, पहले फर्स्ट हाफ देखो कि मान लो ये वाला सर्किट है, तो इससे आउटपुट क्या मिलेगी आपको, दिस पोर्शन। फिर इसको रिमूव को सोर्स हटा के इसको बांधो, देन यू विल गेट दिस आउटपुट। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन। ये जनरली थोड़ा टिपिकल है, इट इज नॉट फॉर योर केस, ये थोड़ा हायर क्लासेस में आता है आपके, बट स्टिल आई कैन वांट टू टेल यू दैट कि इस टाइप के क्लिपर हमारे होते हैं, राइट। सो ट्राई टू सॉल्व एज मेनी न्यूमेरिकल एज पॉसिबल। आप एक मिनट, आपको हो सकता है या तो सर्किट गिवन होगा और आपको प्लॉट करना होगा ये वेवफॉर्म, जनरली ऐसा ही आता है। बट इन अदर सेंस यू माइट हैव गिवन द वेवफॉर्म आल्सो एंड यू विल आस्क कि अगर ये वेवफॉर्म होगी तो सर्किट कैसा बनेगा, ऑल्दो दैट्स टिपिकल वन। बट अभी आपके सिलेबस में जो है फ्रॉम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू वो यही है कि आपको एक सर्किट गिवन होगा, आपको इनपुट गिवन होगी, आपको निकालना होगा कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट कैसे आएगी। और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट इन ऑल एग्जाम्स पूछते हैं, चाहे आप बीटेक के बाद किसी एंट्रेंस एग्जाम में दो, कोई आपका कॉम्पिटिशन, कोई आपकी वो जॉब इंटरव्यूज हो, तो दे जनरली आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्लिपर्स के बारे में कि आपका सर्किट ऐसा होगा तो कैसे आउटपुट आएगी। दिस इज वेरी वेरी लॉजिकल थिंग्स, राइट। So this was all regarding your today's lecture. I hope I think, हाँ बोलो सर। ये जो शीट्स हैं सर, ये शेयर होगी एलएमएस पे सर? बिल्कुल 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 शीट्स, ये जो वीडियो शेयर हो जाएगी ना मुझे, ये जो आपको मैंने शीट दिखाई है, दिस इज द आई हैव टेकन अ पिक फ्रॉम द रॉबर्ट बॉयलस्टैड बुक ओनली। ओके सर। यस सर। ठीक है, जब क्लिपर्स वाला टॉपिक खोलोगे ना बॉयलस्टैड बुक का, उसी क्लिपर्स वाले के लास्ट में ही समरी शीट दे रखी है आपको, तो यू कैन लुक इनटू दैट, अदरवाइज यू कैन ओपन द वीडियो, नो इश्यूज फॉर दैट, राइट। So let's take the attendance now.